کہ جس طرح انگلی پہ لگا ہوا پانی بہت کم ہے، قلیل ہے، بہت جلد خشک ہونے والی ہے، اسی طرح ہماری اور آپ کی زندگی بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اور جس طرح سمندر کی پانی بہت زیادہ ہے ہمیں باقی رہنے والی ہے، اسی طرح آخرت کی نعمتیں باقی رہنے والے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں آخرت کی نعمتیں کتنی اچھی ہوگی، کتنی بہترین ہوگی۔ ایک جنتی کو جو جنت ملیں گے ان کی لمبائی، ان کی چوڑائی کتنی ہوگی، آپ اندازہ لگائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ایک جنتی کو کل قیامت کے دن جو جنت ملیں گے ان کی چوڑائی زمین و آسمان کی مسافت ہوگی۔ آپ اندازہ لگائے کہ ایک جنتی کو 7 طبق زمین و آسمان کی چوڑائی صرف جنت ملیں گے۔ آپ اندازہ لگائے جنت کی نعمتیں کتنی بہترین ہوگی۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ اس دنیا میں سیمنٹ اور اینٹا سے گھر بناتے ہیں، ماربل اور ٹائلز لگاتے ہیں، سیمنٹ سے جوائن کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے لیے سونے اور چاندی سے تیار کیے ہوئے محل رکھے ہیں جس کی سیمنٹ مسک عنبر ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں گے وہ محل جس کی تعمیر اینٹا اور چونا سے نہیں بلکہ سونے اور چاندی سے ہوگی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے آنکھوں نے نہ دیکھی ہے اور ہمارے دل نہ سوچے ہیں، اور نہ ہی ہمارے قلم میں وہ طاقت ہے کہ جنت کی خوبصورتیوں کو بیان کر سکے۔ میرے بھائیوں، یہ چند لمحے کی زندگی اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں گزار لیجئے، اور آخرت میں ہمیشہ چین و سکون والی زندگی گزاریے۔ محترمو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یحیجہ فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی 60 سالہ 70 سالہ زندگی کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ہم اور آپ 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں جس دور سے گزر رہے ہیں، جس خواہشات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، ان خواہشات کو، ان لمحات کو، ان مرحلوں کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ کہ میرے بندو یہ لمحو جان لو انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیاوی زندگی کھیل و تماشے کے ہوتے ہیں، کھیل و تماشے کے ہوتے ہیں، زینت کے ہوتے ہیں، خوبصورتی کے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جب بچپن میں ہوتے تھے، جب ہم اور آپ چھوٹے تھے تو ہمارا کام صرف کھیلنا کھانا پینا ہی تھا۔ جیسے ہم آگے بڑھے پھر میرے بھائیوں ہمیں زینت پسند ہونے لگے، ہم اچھے کپڑے پہننے کو پسند کرنے لگے، اچھے جوتے کو پسند کرنے لگے، زینت آئی۔ پھر جب ہم آگے بڑھے تو ہم مال و دولت کے پیچھے بھاگنے لگے، ہماری کوشش یہ ہونے لگی کہ ہم کس طرح سے زیادہ مال و دولت کمائیں۔ پھر جب ہم آگے بڑھے، زندگی کی عمر جب ڈھلنے لگی تو پھر ہم اپنی کمائی ہوئی مال و دولت اپنی اولاد پر فخر کرنے لگے۔ کمثل الغیث اعجب الکفار، اس کسان کی طرح، اس کاشتکار کی طرح جو جب آسمان سے بارش برستی ہے، کھیتوں پر لہلہاتی ہوئی ہریالی آتی ہے تو کسان خوش ہو جاتے ہیں، اسی طرح میرے بھائیوں ہم اور آپ جب جوان ہوتے ہیں، جوانی کو پاتے ہیں، دولت کو پاتے ہیں، اولاد کو پاتے ہیں تو ہم اور آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ کمثل الغیث اعجب الکفار،
नबातहु सुम्मा यहीजुहु फतराहु मुस्फर्रन, जब आसमान से बारिश बरसती है, खेतियां लहलहाने लगते हैं तो किसान खुश हो जाता है, फिर वो जौवन पर आती है, फिर पीले पड़ जाते हैं और फिर उसको काट कर भूषण बना दी जाती है। मेरे भाइयों, हमारी और आपकी जिंदगी भी यही है कि हम जब जवान होते हैं तो बड़े खुश और खुर्रम नजर आते हैं, लेकिन जवानी खत्म होते ही मेरे भाई हम और आप बूढ़े पे क्यों पहुंच जाते हैं। हमारी जिंदगी भी फसल की तरह जर्दी पड़ जाती है, हमारे बाजू हमारे कमर टूटने लगते हैं, हम सही ढंग से खड़े नहीं हो पाते हैं, हम सही ढंग से रुकू और सजदे नहीं कर पाते हैं। फिर एक दिन आता है कि जिस तरह किसान अपने फसलों को काट कर मशीनों में भूषण बना लेते हैं, इसी तरह हम और आप भी मर जाते हैं। हमारी औलादें हमें और आपको कब्र में दफन कर देते हैं। हमारी हड्डियां, हमारी गोश्त, हमारी वो चेहरे जिसके ऊपर हम तरह तरह की क्रीम लगाए करते हैं, वो चेहरे, वो गूदे, वो हड्डी कब्र में कीड़े मकोड़े खाते हैं। मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी की यही असल है। हम फिर मेरे भाइयों, फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि हम और आप जो इस धरती में आए हैं, हम और आप जो इस दुनिया में आए हैं, 10 साल 20 साल के बाद जब हमारे आलो औलाद पोते पर पोते आएंगे, हमें भी भूल जाएंगे। जैसे खेतियों में हरियाली के बाद, फसल कट लेने के बाद मालूम ही नहीं होता है कि कल वाला दिन यही खेत लहलहाती थी, इसी तरह हम और आप भी मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हमारी भी आलो औलाद हमें और आपको भूल जाएंगे। मेरे भाइयों, इस दुनिया की कोई कीमत नहीं है। मेरे भाइयों, जिस दुनिया के खातिर आज हम और आप अल्लाह को भूल बैठे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन को फरामोश कर डाले हैं, ये सब के सब इसी दुनिया की मोहब्बत के खातिर हम और आप कर डाले हैं। लेकिन मेरे भाइयों, ये दुनिया कुछ नहीं, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया सिर्फ धोखे का टट्टी, धोखे का घर है मेरे भाइयों। और आज हम और आप इस धोखे के घर में आकर धोखे खाकर हमेशा इस वाली जिंदगी को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया की मकाम को बताते हुए सहाबा इकराम को ये एक सुनहरे अंदाज में समझाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार की तरफ से आ रहे थे, आपके साथ चंद लोग थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में देखा कि एक बकरी का बच्चा, मुर्दा बच्चा पड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुर्दा बकरी के बच्चे के पास पहुंचते हैं, उनके कान पकड़ते हैं और लोगों से कहते हैं, अय्युकुम युहिब्बु अन्ना हाजा लहू बिदिरहमुन, के कौन है जो इस बच्चे को, इस मुर्दार बकरी के बच्चे को 1 दिरहम में खरीदेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से पूछा कि बताओ तुम में से कौन है जो इस बच्चे को 1 दिरहम में खरीदेगा। मेरे भाइयों, हम आज आप लोगों को पूछते हैं, क्या हमारे सामने और आपके सामने एक बकरी का बच्चा या गाय का बच्चा मरा हुआ पड़ा है, अगर हम खड़ा होकर बोले कि है हम में से कोई जो 5 रुपया में खरीदेगा, क्या आप लोग खरीदेंगे? है कोई? बोलिए। कोई नहीं खरीदेगा, हरगिज नहीं खरीदेंगे। सहाबा इकराम ने जवाब दिया, मा नुहिब्बु अन्नहु लना बिशैइन, मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा नुहिब्बु, हम पसंद नहीं करते हैं, अन्नहु लना बिशैइन, कि हम किसी भी चीज के बदले में खरीदे, वमा नस्नउ बिही, हम खरीद कर इस मुर्दार बच्चे को क्या करेंगे? अगर ये बकरी का बच्चा जिंदा भी होता तो भी इसके अंदर एक ऐब थी, वो ये ऐब थी कि उनके कान छोटे थे, और वो तो मुर्दा है मेरे आका, इसको खरीद कर क्या करेंगे? कोई नहीं खरीदना चाहते हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आतुहिब्बुना अन्नहु लकुम, क्या तुम लोग मुफ्त में खरीदना चाहते हो, मुफ्त में लेना चाहते हो, फ्री में लेना चाहते हो? बताइए, हम में से कोई क्या लेंगे उस मुर्दार बच्चा को? हरगिज नहीं लेंगे।
क्योंकि वो तो मुर्दा है, बदबूदार है, वो तो हमारे कुछ काम के लिए नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज सहाबा इकराम को समझाने का देखिए कि एक मुर्दा बकरी के बच्चे के जरिए सहाबा इकराम को समझा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फवल्लाहि लद दुनिया अहवनु अलल्लाह मिन हाज़ा अलैकुम। ऐ मेरे सहाबा सुनो, जिस तरह तुम्हारे सामने ये मुर्दार बकरी का बच्चा कोई कीमत नहीं है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक इस दुनिया की कोई कीमत नहीं है। मेरे भाइयों ये हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को किस अंदाज से समझाया कि देखिए कि जिस तरह एक मुर्दार बकरी के बच्चे की कोई कीमत हमारे अंदर नहीं है, हमारे पास नहीं है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक इस दुनिया की कोई कदर व कीमत नहीं है। मेरे भाइयों, आज हम और आप जितनी नाफरमानियां कर रहे हैं, हम और आप जो भी गुनाह के काम कर रहे हैं, उसके पीछे दुनिया की मोहब्बत है। मेरे भाई, उसके पीछे दुनिया की मोहब्बत है। हम नमाज छोड़ रहे हैं, नमाज छोड़ रहे हैं ये सोचते हुए कि अगर हम नमाज में जाएंगे तो हमारा वक्त बर्बाद होगा, हमारी कारोबार में पर मार पड़ेगी, हमारे कारोबार ठप हो जाएंगे। हम माल और दौलत खर्च करने से रुकते हैं इसलिए कि अगर माल और दौलत अल्लाह के राह में खर्च करेंगे तो हमारी माल और दौलत में कमी आएगी। हम जुए खेलते हैं, हराम काम करते हैं ताकि हमारे पास मोटा से मोटा रकम आ जाए। हम सूद खाते हैं इस खातिर ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मालदार बन जाए। मेरे भाइयों, हम और आप जितने भी गुनाह कर रहे हैं, सारे गुनाहों का मजमुआ सिर्फ और सिर्फ यही है कि दुनिया की मोहब्बत ने आज हमें आखिरत को भुला बैठी है और हम गुनाह करने पर तुले हुए हैं। मेरे भाइयों, ये दुनिया की कोई कीमत नहीं है। मेरे भाइयों, हम और आप जिस तरह खाली हाथ, नंगे बदन, नंगे पैर माँ के पेट से पैदा हुए थे, इसी तरह हमें और आपको एक दिन इस धरती से जाना है। हमारी आखिरी हैसियत यह होगी कि हमें जो गुस्ल दिया जाएगा, हम किसी के महरूम होंगे। वो गुस्ल हम खुद से नहीं कर पाएंगे, हमें कोई नहलाएंगे। हमको जो कपड़े पहनाए जाएंगे वो ताकत भी नहीं होंगे कि हम अपने कपड़े को समेटेंगे, दूसरा कोई हमें कपड़ा पहनाएगा। मेरे भाइयों, हम और आप जो ये कमीज पहने हुए हैं, कल वाला दिन अगर इसी कमीज पर मेरी मौत होगी तो मेरे अहलो आयाल इसी कमीज को भी उतार लेंगे। अगर ये कमीज नहीं उतरेगी, घर वाले बोलेंगे कि चिल्लाओ, काट कर निकाल लेंगे। मेरे भाइयों, जिस दुनिया की खातिर हम इतनी नाफरमानियां कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, ये दुनिया इतनी बड़ी जालिम है कि कल कयामत के दिन, वो दिन जिस दिन हमारी मौत होगी, वो दिन हमारी फटा हुआ पुराना कपड़ा भी हमें ले जाने के लिए नहीं देंगे। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाइए, सोचिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी मर जाता है तो उनके साथ 3 चीजें जाती हैं, उनके माल, उनकी औलाद और उनके अमाल। यर्जे व इस्नाने, 2 चीज वापस आ जाती है। वयबका वाहिदुन, और एक ही चीज उसके साथ बाकी रहते हैं, वो है नेक अमाल। लिहाजा मेरे भाइयों, वक्त की किल्लत इसलिए कि उलमा इकराम की लंबी फहरिस्त लगी हुई है। मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि हम और आप जिस दुनिया की रंगीनियों में खोकर, जिस दुनिया की जीनतों में गुम होकर, मेरे भाइयों, हम और आप सुबह शाम उठते बैठते, सोते जागते नाफरमानी कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जिस दुनिया को हासिल करने के लिए ये दुनिया इतनी जालिम है कि कल मेरे भाइयों हमारे जिस्म से फटे हुए लिबास भी उतार लेंगे। मेरे भाइयों, हम जैसे खाली हाथ आए हैं, माँ के पेट से नंगा आए हैं, इसी तरह नंगे होकर भी हमें जाना है। जाएंगे साथ तो आमाले स्वाले जाएंगे, आमाले स्वाले जाएंगे। मेरे भाइयों, हमारे मौसूफ ने बताए कि आमाले स्वाले में से एक सदका जारिया
ہے وہ صدقہ جاریہ جو آپ مر جائیں گے آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے, آپ مدفون ہو جائیں گے, آپ کی قبر میں نیکیاں پہنچتے جائیں گے. میرے بھائیوں, ہمارے آپ اور آپ کے سامنے صدقہ جاریہ کرنے کا ایک موقع آ گیا ہے. نواب پڑا کی جامع مسجد آج آپ کو اور ہمیں پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے نواب پڑا کے لوگوں, اے مسلم نوجوانوں, تم آگے بڑھو اور اس مسجد میں حصہ لو اور صدقہ جاریہ میں اپنا نام لکھوا لو. آج تم صدقہ کر کے جاؤ گے, تم قبر میں پہنچ جاؤ گے, نیکیاں تمہارے پاس پہنچتے جائے گی. میرے بھائیوں, یہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنا عنوان کو ختم کرتا ہوں. آخر میں اند اللہ دعا گو ہوں کہ یا الہ العالمین, تو ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی سنورنے سنبھلنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی حاجہ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو لیجیے پہلے. اسی میں ٹھیک رہے گا, اسی میں ٹھیک رہے گا.